उसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम्। एसो पंचनमुकारो सब्बभावप्रणाशनो मंगलानौ च सव्यसे परमं हवै मंगलम्। एसो मंगलनिलो भवदिलो सयलसंगसुवजनो सिरिनमुकार महामन्तो चिन्तयमित्तो शुभं जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवम्। जय सुवानं पवोतिथयरानं अपचिमो जय जय गुरुलोगानं जय मदप्पा। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुदेवे चरणाम्बुजे लगभग 27 लाख नौका એનાથી સભર આ વાતાવરણ બની ગયું છે. અહીં બેસીએ ને એક અલગ જ સ્પંદન આવે. થાય છે પણ ઈચ્છા જીવનભાઈ રાતના 2 વાગે 1:30 વાગે 2:30 વાગે એ બધાનું ક્રીમ આની પર આવી ગયું છે આ જગ્યા પર. પૂજ્યપાદ બહુ શ્રુત શિરોમણી આગમત ધારક આનંદ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના અંતરતલમાંથી નીકળેલા એક સત્પુરુષના લક્ષણોનું અનુચિંતન કરી રહ્યા છે. એક એમને ચિત્ર ઊભું કર્યું છે સારા માણસ. માણસ એક્સપાયર થઈ જાય ત્યાર પછી શોધ કરવામાં આવે કે શેને લીધે મળી ગયો. એવી રીતના સારા માણસો જે શલાકા પુરુષ હોય, તીર્થંકર હોય કે ઐતિહાસિક પુરુષો હોય, એ લોકો માટે એક શોધ ચાલે. સોક્રેટિસ કે આઇન્સ્ટાઈનનું મગજ એને સંગ્રહી લેવામાં આવે કે આના મગજમાં શું હશે. એવી જ રીતના પૂજ્યપાદ આગમતધારક સાગરાનંદ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબે સારા પુરુષ એ લોકોનો સમાજ સાથે, પોતાની સાથે, રાષ્ટ્ર સાથે, પરિવાર સાથે કયો બિહેવિયર હોય છે, કયો એટીટ્યુડ હોય છે અને કઈ
ભાવનાઓ હોય છે એને આ ગ્રંથમાં સંકલિત કરી છે. કારણ કે મહાપુરુષ કે સત્પુરુષ એ ક્યારે પૈસાથી અમર નથી થતા. આજ સુધીમાં દુનિયામાં ક્યારે કોઈ પણ માણસ પૈસો ભેગો કરવાથી અમર થયો નથી. પૈસો ખર્ચવાથી અમર થયો છે. જે માણસે માત્ર પોતાના માટે ખર્ચ્યા હોય એ માણસ ઓછો અમર થયો છે. જે માણસે પરિવાર માટે પણ કશું કર્યું હોય એ માણસ થોડુંક વધારે અમર થયો છે, જીવ્યો છે. જે માણસ એનાથી આગળ વધીને સમાજ માટે પણ કશું કર્યું છે એ માણસ થોડુંક ઓર વધારે જીવ્યો છે. જે માણસે રાષ્ટ્ર માટે કર્યું છે એ થોડુંક ઓર વધારે જીવ્યો છે. બાકી ગાંધીજીને આપણે શું લેવા દેવા? કોઈ લેવા દેવા કરે? રાણા પ્રતાપને આપણે શું લેવા દેવા? શિવાજીને આપણે શું લેવા દેવા? શ્રેણિક મહારાજા કે કુમારપાલ મહારાજા કે વસ્તુપાલ તેજપાલને આપણે શું લેવા દેવા? ₹1 આપણા માટે મૂકીને ગયા છે. છતાં આ લોકો અત્યારે જીવે છે, લોકોના હૈયામાં જીવે છે, આચાર્યોના શાસ્ત્રોમાં જીવે છે, પ્રવચનોમાં જીવે છે, અમારા આદર્શોમાં જીવે છે. કે ₹100 હતા એટલે વસ્તુપાલનો મહેલ મળે. તેજપાલનો મહેલ ક્યાં છે? ક્યાં હતા ખબર છે? લોકો કલિબુંડમાં હતા, ધોલકામાં જીવતા હતા, ધોલકામાં રહ્યા હતા. આખું ધોલકા ફરી વળો એમાં વસ્તુપાલનો મહેલ મળે ખરો? પણ એને બંધાયેલું દેરું આબુ પરનું એ આજે પણ મળે. તો જે વ્યક્તિ પોતાના માટે જીવ્યો છે એ ઓછું જીવ્યો છે. જે વ્યક્તિ પરિવાર માટે જીવ્યો છે થોડુંક વધારે જીવ્યો છે. જે વ્યક્તિ સમાજ માટે જીવ્યો છે એ થોડુંક ઓર વધારે જીવ્યો છે. જે રાષ્ટ્ર માટે જીવ્યો છે એ થોડું એનાથી વધારે જીવ્યો છે. અને જે વિશ્વ માટે જીવ્યો છે એ ઓર વધારે જીવ્યો છે. આમાં શું છે? દાદાને આપણે કોઈ લેવા દેવા કરી? કોઈ લેવા દેવા કરી? આમ હકીકત કહેવા જઈએ તો શું લેવા દેવા? અને કદાચ તમારે લેવા દેવા હોય તો પણ શું? જે થિયરી છે કર્મની અને મોક્ષની, એ થિયરીની અંદર તો એ મોક્ષમાં ચાલ્યા ગયા, હવે તો બિલકુલ લેવા દેવા નહીં. કદાચ પેલામાં તો ચલો તમે યાદ કરો કે માણસ કદાચ દેવલોકમાં હોય તો ખુશ થઈને આવે ને કહે કે પ્રસન્ન થાવ, હું તમારું પર પ્રસન્ન છું, માગે તે આપી દઉં અને તમે માગી લો અને કદાચ તમને આપી દે, તથાસ્તુ કરી લે. આવું પણ કદાચ દેવલોકમાં હોય તો મળે. માનીભદ્ર કામના કે વાસુપૂજ્ય કામના? આપણને ફળે કોણ? નાકોડા ફરે, માનીભદ્ર ફળે કે વાસુપૂજ્ય ફળે? વાસુપૂજ્ય દાદા ફળે. એ ગમે તેટલી નૌકારવડી ગણો, ગમે તેવા સકવસ્તો અભિષેક કરો, બકુલભાઈ દિવસમાં 3 વાર કરી અભિષેક, પરંતુ વાસુપૂજ્ય દાદા ક્યારે પ્રગટ થાય એવી ઘટના ક્યારે બને ખરી? બોલો, બને? બને ખરી? એક રીતે બને, એક રીતે નહીં. બોલો કેવી રીતના વ્યવહારિક નહીં બને. હા, અને ચિંતન મનનથી બની શકે. શું બની શકે? આવે કે આવે વાતો કરી શકે. એમને મોક્ષમાં ગયેલા વાસુપૂજ્ય દાદાનો પાછા ન આવે તો પાછા ત્યાં બેઠા બેઠા આપણે લાભો કરે. આપણે હેલ્પ કરી શકે ને. શું હેલ્પ કરે એમ કહું છું? હેલ્પ કેવી રીતના કરે? કેવી રીતના કરે? એમની પાસે કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નથી. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નથી. હેલ્પ કરવા માટે આંખ જોઈએ, નાક જોઈએ, બોલી જોઈએ, શબ્દ જોઈએ, પૈસા જોઈએ, હાથ જોઈએ, કાન જોઈએ, નાક જોઈએ. આ બધું હેલ્પ કરવા માટે જોઈએ કે ના જોઈએ? આપણું સમર્પણ એ ઓછા કરે, એ ઓછા કરે. એ આવી કે તમે કશા ઓછા કર, હું જેટલું કહું છું એટલું કે ખરાય તમને તો શું કરે? એના અધિષ્ઠાય કેવો સાહેબ કાઈ કરે? છેલ્લે અધિષ્ઠાય કેવો જાય એમાં? પણ સાહેબ ને છેલ્લે અધિષ્ઠાય કેવો જાય? મારે તમને પતાવવા હોય તો મોક્ષ મહારાજને પતાવવા અચ્છા, તો પડે. આપણે પતાવવા પડે. અને કોઈ કામ કરીએ, વાસુપૂજ્ય દાદાના અધિષ્ઠાયકની સ્થાપના કરીને એની જ પૂજા અર્ચના કરીને પછી વાત છે વાસુપૂજ્ય દાદાની. એવું કરવાનું. આ સબ્જેક્ટ બહુ સરસ મજાનો છે. આમ
એમના વર્તન જોઈને આપણાનું વર્તન છે. હે એમના વર્તન એમનું ચારિત્ર જોઈને આપણામાં બી ચારિત્રનું વધારે વિશ્વાસ વધી એ આવે ના આવે એની વાત કરીએ આવે છે. કે કોઈ પણ રીતે આવે ના એ કોઈ પણ રીતે આવી શકે ખરા મનની ભાવના અરે યાર આપણામાં શું આવે એની વાત નથી કરતો એ આવે કે ના આવે હું જે પ્રશ્ન કરું છું એનો જવાબ આપો મને આપણામાં શું થાય એ બધી વાત પછીની વાત છે ખરા એ આવે કે ના આવે અને માની મંત્રને પૂછો તો આવે કે ના આવે આવે આપણા માટે કોણ મહત્વનું કોણ મહત્વનું બોલો આવે કે ના આવે પણ મેં તમને ક્યાં કીધું પૈસાનો લાભ તમે પૈસા પર ગયા કેમ મેં ક્યાં તમારા પૈસાનું કીધું ભૌતિક સુખ માટે માની લીધેલી અને આધ્યાત્મ માટે વાતો પડશે. અને હા આધ્યાત્મિક એટલે આધ્યાત્મિક શું આપે વાસુભાઈ મને એ પૂછવું છે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા શું કરે તમને ક્રોધ આવ્યો ત્યારે વાસુભાઈ દાદા આવે અને ક્રોધ જેના કારણે આવ્યો હોય ભાઈ ચા બરાબર નથી બની એટલે મને ક્રોધ આવ્યો એટલે વાસુભાઈ દાદા હારી ચા આપી દે એમ એને આવવાનો આપણે ભાવ હોય જ નહીં. આપણે એના તમને થવું જોઈએ એવો ભાવ હોય. એટલે પ્રશ્ન એ થયો વાસુભાઈ દાદા આવે ના ના એમની કોઈ શક્તિ આવે ના એના થકી જ અને આ થકી થકી છોડી દો ના એના થકી આવો એના થકી એટલે એ કોઈને મોકલે તો એના થકી એટલે એ કોઈને મોકલે એક અધિષ્ઠાક જા ભાઈ મારો ભગત છે તું ક્યાં જા એવું પોસિબલ છે નથી પોસિબલ કારણ કે એ પણ અધિષ્ઠાઈને ફોન કરી શકે નહીં એ બોલી શકે નહીં ચાલી શકે નહીં હાલી શકે નહીં ડોલી શકે નહીં સૂઈ શકે નહીં ઊંઘી શકે નહીં કશું જ ન કરી શકે હવે આ એના થકી પણ કેવી રીતના કહીએ હું તમને બહુ સાચી વાત કરું છું આવા પ્રશ્નોને તમે ડિબેટ તરીકે ચર્ચી લો તમારા છોકરાઓ પૂછે ને કે સાહેબ શું ભગવાન શું કરે બતાવો તો ક્યારે આવે ભગવાન ચર્ચી લો આ પ્રશ્ન ડિબેટ તરીકે ચર્ચી લો વાસુ પૂજ્ય દાદા અમને વધારે ફળે કે માણીપત્ર દાદા વધારે ફળે કે એના અધિષ્ઠાયકો વધારે ફળે અધિષ્ઠાયક હજરાજુર આવે કે વાસુ પૂજ્ય દાદા આવે અરે હું કહું છું એ બધું સેકન્ડરી છે કોની જરૂર પડે ને કોની જરૂર ના પડે તમને નથી પડતી મને પડે છે તમને નથી પડતી મને પડે છે ભાઈ આ અંતરિક્ષનો પ્રશ્ન છે આ સમસ્યાનો પ્રશ્ન છે તમે કો મને 1000 દેવો ઓછા પડશે એટલે મારે કામ છે નથી એની જરૂર છે ને તો પછી જરૂર પડશે કે નહીં પછી વાસુ પૂજ્ય દાદા હશે આદેશ્વર દાદા હશે તો એની જરૂર પડશે ને નહીં તો કપડથી યક્ષની સ્થાપના જ કેમ કરે વજ્રસ્વામી ભગવાન સિદ્ધાચલ ઉપર કપડથી યક્ષની સ્થાપના કેમ કરે અને 24 તીર્થંકર પરમાત્મા શાસન દેવ દેવતીઓની સ્થાપના કેમ કરે જે થાય એમાં એનું પુણ્ય કામ કરી અને ન થાય એમાં આપણું પુણ્ય ઓછું પડી બરાબર મારો પ્રશ્ન તમને દેવી દેવતા સંબંધી છે જ નહીં મારો પ્રશ્ન એ છે વાસુ પૂજ્ય દાદા કોઈ પણ રીતે તમારી પાસે આવે કે ના એક સવાલ છે હા બોલો આપણે ઘણી જગ્યાએ કિસ્સા સાંભળવા મળે છે કે પ્રતિમામાંથી અમીજરા થાય છે તો વાત આવે છે એના કારણે અમીજરા થાય છે કે અધિષ્ઠાયક દેવ આ આવે પ્રશ્ન તો મારો છે અને તમે પૂછ્યો એમાં કન્ફ્યુઝન છે એટલા આ માટે પ્રશ્ન તો મેં પૂછ્યો છે એટલે જો અમીજરા થાય તો એનો મતલબ એમ છે કે ભગવાન આવે છે આ પછી અધિષ્ઠાયક દેવતા દ્રષ્ટિએ અમીજરા થાય છે આ કન્ફ્યુઝન છે બોલો શું છે? આપ જવાબ આપો. હું તો બેઠો જ છું યાર આપ જવાબ આપો. નહીં તમે ડિબેટ બોલો ભગવાન આવે ના આવે તો ભગવાન શું કરે તમે ખૂબ ફળ ચડાયા ખૂબ નૈવેદ્ય ચડાયા ખૂબ સ્તુતિ બોલી ખૂબ આરતી ઉતારી ખૂબ સક્રસ્તો અભિષેક કર્યા તમે બહુ બધું કર્યું અને ભગવાન આપવાના જ ન હોય તો જે આપવાનું હોય એની પૂજા કરવી જોઈએ કે જે ના આવવાનું હોય એની પૂજા કરવી જોઈએ આ બધી પૂજા કરવાથી આપણું મનમાં કંઈક હોય ને આપણે આપણો જેટલે ભાવથી આપણે કહીએ તો આલંબન છે. કારણ કે આપણું મન છે, આપણો આત્મા જ એક પરમાત્મા છે. આલંબન છે. આલંબન લઈએ તો પછી તમારી મૂર્તિ મૂકી દો ને યાર નહીં નહીં તમે પ્રોપરલી
તમારા દીકરાના દીકરાઓને આન્સર આપી શકતા હો ને એવી રીતના ગળ્યો પણ હોય અને ગરમ પણ હોય એવો શીરો હોય તો શું થાય? ઉતરી જાય. એવી વાત કરો. ખ્યાલ આવ્યો? બોલો શું કહો છો વિનંતી? સાહેબ, વાસુપૂજ્ય દાદાના આત્મીય ગુણો એ પ્રતિમાની અંદર સંપૂર્ણપણે ભરવામાં આવેલા છે અને માટે વાસુપૂજ્ય દાદા આવે છે અને એ વાસુપૂજ્ય દાદાના અધિષ્ઠાય દેવો તરત જ આપણને હજરા હજુ પછી હાજર થાય. બોલો ભાઈ. આજે આપણે થોડી ડિબેટ કરી લઈએ 10 મિનિટ. કે વાંધો નથી. બોલો આ બરાબર છે? ये राइट है? बराबर है? उन्होंने जो बोला वो बोले सही है? बोलिए. हाँ बोलो बोलो. कोई भी प्रतिमा जी ने प्राण मेरे को हिंदी बोला दो, आप गुजराती क्यों बोलते हो? हाँ मेरे को हिंदी बोला दो और आप गुजराती क्यों बोलते हो? આપણે સારી ગુજરાતી આવડે છે સાહેબ. બોલીમાં ગુજરાતીઓ સાથે જ રહે. અરે તમને તો ઘણી બધું આવડે છે. બોલો હવે. જે પ્રતિમાજી કોઈ પણ પ્રતિમાજી છે એમને ગુરુ ભગવાન આચાર્ય ભગવાન એમનાથી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કર્યા પછી એમનામાં પ્રાણ પુરાયું છે. એટલે આપણે જે શ્રાવક છે જે પણ એમની દર્શન પૂજા જે પણ કરે છે એમની ઈ ભાવ પોતાના ભાવથી, કારણ કે આ એક જૈન ધર્મ બધાને નથી મળ્યું, જેને મળ્યું છે શોર્ટમાં બોલો, બહુ લાંબુ નહીં કરો. હા, તો એને ઈ પરમાત્મામાં ઈ પ્રતિમાજીની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પુરાઈ છે એટલે એની અંદર આપણે હવે સીધી વાત કરું, પ્રાણ પુરાવા તો શું થાય? આંખો પટપટે કે ના પટપટે? શ્વાસ લે કે ના લે? સાહેબ ઘણી આ જગ્યા પ્રાણ પુરાયો છે મતલબ શું? આ નિર્જીવ છે અને આ પ્રાણ છે. તો આ નિર્જીવ છે અને આ પ્રાણ વાળું છે. એ બે વચ્ચે ફરક ખરો કે નહીં? ફરક છે. ખરો ને? તે એવો પ્રાણ કોઈ દેખાય છે તમને એમાં? આ મારો નહીં, તમારા દીકરાના દીકરા તમને ક્વેશ્ચન કરો તો જવાબ શું આપો? બોલો. તમે પ્રાણ પૂરી દીધા, મહારાજ કે પ્રાણ લઈ આયા, એ મારી પાસે થોક બંધ પડેલા છે, હું લઈ આવું ને એમાં મૂકી દઉં એમ, અને પછી એ જીવિત થઈ જાય તો પછી આંખો કેમ પટપટતી નથી? હોઠ કેમ પટપટતા નથી? શ્વાસ કેમ લેતા નથી? ખાતા કેમ નથી? પીતા કેમ નથી? આપણે 4 કલાક શિબિરમાં બેહીએ તો સરું શરીર રખડી જાય. કેટલા વખતથી બેઠા? 16 વર્ષથી આમને એમ બેઠા છે. પ્રાણ એટલે શું? પણ મારે તમને એ જ કહેવા માંગવું છે કે તમારા મનની અંદર જે ધારણા હોય ધારણાને ક્લિયર કરો. અધૂરી ધારણાઓએ ઘરની અંદર વિસંવાદ ઉભો કર્યો છે. હું ભગવાનને માનતો નથી, કારણ કે ભગવાનમાં શું છે? કશું જ નથી. મૂર્તિ પૂજાને માનતો નથી, કેમ કે મૂર્તિમાં છે શું? કશું નથી. અને એમ કે પ્રાણ આવતા હશે, આવું તમને કહે દો અને જવાબ તમારી પાસે પ્રાણ આવે છે, પ્રાણ મુકાય છે એટલે શું? પણ मतलब मेरा ये कहना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको माइंडली क्लियर करो. ऐसा क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसके लिए हमारे में कोई संशय ही नहीं है. समझ में आयो? શું થાય છે? વાસુપૂજ્ય દાદા આવે ખરા? આપણે તો ફરી પ્રશ્ન મારો એક જ રહેવાનો. ફરી મારો પ્રશ્ન એક જ રહેવાનો કે મારો મૂળભૂત પ્રશ્ન આ છે, અધિષ્ઠાન દેવ આવે ના આવે, આમ થાય તેમ થાય, એ બધી વાત જવા દો. વાસુપૂજ્ય દાદા મોક્ષમાં ગયા છે એનું સ્મરણ કરીએ તો એ આવે કે ના આવે? સત્સંગ વધતું જાય છે. હે? બોનસ વધતી જાય છે. પ્રાણ એટલે શક્તિ. કઈ શક્તિ આવે? કઈ શક્તિ આવે? વાસુપૂજ્ય દાદાની અંદર મેં અંજન સલાકા કરી, કઈ શક્તિ આવે? એમનો આત્મા આવે તો શું થાય? એ શક્તિ વોટ મિનિંગ? શક્તિ એટલે શું? હું આ બધું સમજાવવાનો છું તમને. હું તમને આ એટલા માટે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરું છું કે દેરાસરમાં ગયા પછી જ્યારે આપણને વાસુપૂજ્ય દાદાની પ્રતિમા મળે, તમને ક્લિયર હશે કે આ શું છે, તો તમે એની એ રીતે ભક્તિ કરશો. નહીં તો માણીભદ્ર દાદાની જેમ એની સામે ભક્તિ કરશો. અમારે કેવું કેમ પડે કે વાસુપૂજ્ય દાદાની સામે તમે આ બધું માંગો નહીં? કેમ કેવું પડે છે? કારણ કે તમે વાસુપૂજ્ય દાદાને એ લેવલમાં સમજ્યા છો કે હું ગાડી માંગુ તો ગાડી મળે, હું વહુ માંગુ તો વહુ મળે, હું બંગલો માંગુ તો બંગલો મળે. વાસુપૂજ્ય દાદા બધું જ આપે એવું અમે માણીભદ્રને જેવો માનીએ છીએ એવી રીતના ભગવાન માનીએ છીએ, એના કરતા મોટા માનીએ છીએ. કેમ?
કે વાસુ પૂજ્ય દાદા કોણ એ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો નથી. ખ્યાલ આવ્યો તમને? એટલા માટે અમે કદાચ આના કરતા આનું લેવલ ઊંચું સમજી લીધું. ઠીક છે, ઊંચું લેવલ સમજી લેવાથી કામ પૂરું થતું નથી. છે કોણ, થાય છે શું, એ અહીંયા આવે કે ના આવે, तो શું એનો અમારે કેમ મૂર્તિ बनावानी, એને અમારે કેમ पूजा करवानी, इसके सामने हमको क्यों चितवंदन इतनी भक्ति क्यों करने की, उससे क्या फायदा. बोलो नहीं. हाँ बोलो बोलो. શું ભગવાનની શક્તિ રે વાસુ પૂજ્ય દાદા સિદ્ધિ સંગ બોલો. હવે બીજું કોઈ ભગવાન ભગવાન કશું નહીં. વાસુ પૂજ્ય દાદાની શક્તિ ક્યાંથી આવે? ક્યાંથી ક્યાંથી પણ ઉપર એટલે સિદ્ધશિલામાં એક શક્તિ રહેલી છે. વાસુ પૂજ્ય દાદાની શક્તિ રહેલી છે. કઈ શક્તિ? અરે એમના થ્રુ ક્યાં માનવા જરૂરી છે? કઈ શક્તિ? પહેલા તો શક્તિ કન્ફર્મ કરો. હવે શક્તિ આવે છે હું માન્યું, તો શક્તિ કન્ફર્મ કરો. કઈ શક્તિ સિદ્ધશિલામાં વાસુ પૂજ્ય દાદાની પાસે છે કે જે શક્તિ હું તમે કે અધિષ્ઠાયક ક્યાંથી લઈને અહીં લાવી શકે? કઈ શક્તિ છે? એટલે હવે આપણે આયા કે હવે વાસુ પૂજ્ય દાદા આયા? હવે સીધી વાત કરો, समझ पड़े છે? समझ में आया ना? कौन सी सिद्धशिला में शक्ति है और कौन से देव जा सकते हैं और वहां से वो शक्ति लेके आ सकते हैं और वो शक्ति गुरु महाराज को दे सकते हैं और वो गुरु महाराज वो शक्ति अंदर डाल सकते हैं. ऐसी कौन सी शक्ति है? बराबर છે? प्रश्न बराबर છે? प्रश्न पहला समझो. आंसर समझवा माटे आपके दिमाग में प्रश्न सही तरीके से बैठना चाहिए, तब जाकर के आंसर बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा. हजारों साल से हम संस्कारवश परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं. अभी तक हमने ये नहीं समझा कि आखिर ये भक्ति हमको देती क्या है, हम किसकी भक्ति कर रहे हैं और इस भक्ति से उसका क्या लेना देना है. वासु पूज्य दादा को हमारी भक्ति से लेना देना क्या है? कोई ने कोई जवाब आपको, किसी को भी कुछ जवाब देना है? हाँ, तो उसी मैं वासु पूज्य दादा का पूछ रहा हूँ. हैं? આપણે પ્રભુમાં ખાલી આપણા પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જોઈએ, પણ આપણે દાદા અહીં આવતા નથી. આપણે આપણને જ જોઈએ છે શુદ્ધ સ્વરૂપ, કે શુદ્ધ બને તો આવો બને. मैंने अभी बोला जो खुद के लिए जीते हैं उसको कोई याद नहीं करता है. जो परिवार के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है, जो राष्ट्र के लिए जीता है, जो विश्व के लिए जिया है, वो हजारों साल तक अमर हो जाएंगे. यहीं से हमारा प्रश्न शुरू हुआ कि हम वासु पूज्य दादा को अमर रख रहे हैं. इतने साल हो गए, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी हम वासु पूज्य दादा की भक्ति क्यों करते? क्योंकि उन्होंने जो साधना की, उन्होंने जगत के समस्त जीव राशि का कल्याण होने के लिए उन्होंने उच्चतम जो भाव विश्व खड़ा किया और उसको प्रदान किया विश्व के ऊपर. समझ गए? और वो प्रदान होने के बाद उसकी शुभ असर मेरे को भी हो. उनका जब जन्म कल्याण हुआ होगा तब मैं जहां भी हूंगा वहां में मेरे को भी आनंद आया. जस्ट लाइक छोटे स्वरूप में समझ लीजिए गांधी जी. गांधी जी ने हमको क्या दिया? हमको क्या दिया? कुछ नहीं. परिवार, हमारे परिवार को क्या दिया? एक पत्र भी नहीं लिखा. हमारे समाज को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया. लेकिन उन्होंने किसको दिया? राष्ट्र को दिया. राष्ट्र को दिया तो हम राष्ट्र में है, तो उसकी असर परिवार में, समाज में, हमारे तक ये असर हमारे पास आई, तो हम गांधी जी को याद करते हैं. तो वासु पूज्य दादा, आदिश्वर परमात्मा, वैष्णव परमात्मा, ये सभी तीर्थंकर परमात्मा ने शुभ भावों की शुभ वर्गणा इस पूरे विश्व में प्रदान करी और उस प्रदान से विश्व में रहे हुए कोई भी जीव बाकी नहीं रहा.
गांधी जी ने आजादी ली, इसमें भारत के जितने लोग हैं 125, હવે તો ગોખાઈ ગયું હોય, નરેન્દ્ર મોદી આ ગોખાડ્યું છે 125 देशवासियों, समझ में आया? अब बधाने को बेनिफिट मिला नहीं, इन सभी को बेनिफिट मिला नहीं आजादी का। वैसे तीर्थंकर परमात्मा ने जिस समय ये शुभाव विस्फोटित किया, प्रदान किया, विश्व को दे दिया और खुद निकल गए, वो जो प्रदान था वो बहुमूल्य प्रदान था। उस प्रदान के असर हमारे पास भी है, और अगर वो प्रदान हम कर सकते हैं, वो प्रदान हम कर सकते हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो वासुपूज्य दादा वो नहीं आने वाले, लेकिन उन्होंने जो भाव विश्व इस विश्व में प्रदान किया वो प्रेरणात्मक हम ले सकते हैं। आचार्य भगवान अंजन शलाका करते तब क्या करते, उनके वासी जो भी प्राण आयु है, जो भी भाव आयु है, जो भाव प्राण है, उसको खींचते हैं और उसको खींच करके उस प्रतिमा में डाल देते हैं। समझ गए? गांधी जी की समाधि है वो क्या है? प्रेरणा है। गांधी जी की प्रतिमा वो क्या है? प्रेरणा है। वैसे परमात्मा की प्रतिमा क्या है? प्रेरणा है। कौन सी प्रेरणा? तिन्नानम तारयाम बुद्धानम बोयानम मुद्दानम मोगानम, ये प्रेरणा वो प्रतिमा देती है। समझ में आया? अब ये प्रेरणा देते 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 और कुछ लाभ तो अपने आप मिल जाते हैं। आपके पास गांधी जी का 1 लीटर हो तो आपको लाभ कितना मिलेगा? गांधी जी ने आपको एक पेन दी हो गिफ्ट, वो आपके पास है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? क्या हो? बहुत वैल्यू हो जाए। ओ गांधी जी तुम्हारे घर आए थे, तुम्हारे घर पेन दिया है, क्या बात करते हैं। वैसे ऐसी अद्भुत शक्ति, उस शक्ति जो पौद्गलिक शक्ति है, समझ गए? कौन सी शक्ति है? पौद्गलिक शक्ति है। आत्मिक शक्ति को कोई पकड़ ही नहीं सकता है, लेकिन इस पुद्गल की शुभ शक्ति को पकड़ के हम वासुपूज्य दादा की प्रतिमा में आरोपित कर रहे हैं। अंजन शलाका का विधान ये चीज है, और वो शक्तियां आरोपित करते ही उसका कनेक्शन शुभ भावों के साथ चला जाता है, और वो जो शुभ अणुपरमाणु है वो हमारे कषायों को शांत करते, वो हमारे विषयों को शांत करते, हमारी गलत भावनाओं को शांत करते, हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, असूया, इन सभी को शांत करते, क्योंकि परमात्मा ने वही शक्ति दी है जिस शक्ति से क्रोध शांत हो जाए। समझ में आया? और इस शक्ति की हम पूजा करते हैं। न कोई सिद्धशिला में जाता है, न वहीं से कोई शक्ति लाता है, न इसमें आरोपित करता है। भगवान ने जो शक्ति, जो भाव, हमने भी शिवमस्तु सर्व जगत जो सोचा, उसके जो भाव थे उस भाव को पकड़ सकते हैं। किसी की आंख देखेंगे तो वो निर्विकार आंख दिखेगी, प्रशमरस आंख दिखेगी, तो उसके बिन बुलाए उसके भाव को पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। किसी आंखों में ये भाव था, वो नहीं बोला तभी हम पकड़ लेंगे। तो ऐसी शक्ति वासुपूज्य दादा के पास है, और वो शक्ति की पूजा करने से हमारे में क्या होता है? क्या होता है? उन्होंने जो यात्रा करी उस यात्रा हमें प्राप्त होती है। समझ गए? बाकी ना कोई वो आते हैं, ना कोई पकड़ते हैं, लेकिन हमारी यात्रा का पुशअप कौन करते हैं? कौन करते हैं? वासुपूज्य दादा। अगर वो नहीं होते, प्रतिमा नहीं होती, आदिश्वर दादा, पर्सनल परमात्मा, सिमंदर परमात्मा, उनकी प्रतिमा नहीं होती, तो हमारी यात्रा को फोर्स देने का काम कोई नहीं करता। आज भी हजारों लाखों साल होने के बाद भी ये परमात्मा का नाम स्मरण करते ही उनकी उस ऊर्जा से हमारा भीतर के शत्रु नाश हो जाते। समझ में आया? आज का वाक्य बहुत समझने जैसा है। कौन सा वाक्य है? निस्त्रुंसो, बोलो निस्त्रुंसो। जे आ अवक्र છે ને એને અ વાંચવાનો, અ રાતો, નિસ્ત્રુંસો, નિસ્ત્રુંસો, અ રાતો, નિસ્ત્રુંસો, નિસ્ત્રુંસો, અ રાતો। શત્રુ માટે નિર્દય હોનારો, क्यों? शत्रु माटे
शत्रु के लिए वो निर्दय होना चाहिए। समझ गए? बहुत गजब का ये विशेषण है। परिवार सत्पुरुष कैसा होना चाहिए, शत्रु के लिए निर्दय होना चाहिए, उसके ऊपर दया नहीं करना। अब बार बार इच्छा होती है तो खा लो एक बार, ये दयालुता होगी। यार आइसक्रीम की बहुत इच्छा हो रही है, खा लो एक बार। सोने की बहुत इच्छा हो रही है, सो जाओ। समझ में आया? पहचान का तरीका आना चाहिए, पहचानने का तरीका कि ये जो विचार आ रहा है वो मित्र है या दुश्मन है। समझ में आया? दो तरीके के शत्रु होते हैं, एक अंतर शत्रु, एक बाह्य शत्रु। शत्रु के ऊपर निर्णय होना। वासुपुत्र दादा वो सत्पुरुष से बहुत कुछ आगे है, और वो कैसे है? शत्रु के प्रति निर्दय है। ठीक है, तू संसार में है और तेरी जवाबदारी है तो भिक्षा मत लेना, ऐसा वासुपुत्र दादा कहेंगे कभी? भाई ये तेरी ब्रह्मणा है, सब मेरा है, मेरा घर मेरा है, मेरा परिवार मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है, ये प्लॉट मेरे है, ये घर मेरे है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी पत्नी है, ये सब तेरा भ्रम है। और वो शत्रु है, भ्रम वो स्वयं शत्रु है। खड़ा हो जा, निकल जा। कौन बोलेगा ये? कौन बोलेगा? क्योंकि उस शत्रु को शत्रु के तरीके से पहचानने का तरीका उनके पास है, हमारे पास नहीं है। हम शत्रु को पाल पोष के बड़ा करते हैं। शरीर के ऊपर की लेशिया, शरीर का हमारी आसक्ति हमको शत्रु दिखती है। शरीर के ऊपर की हमारी आसक्ति वो हमारे में एक शत्रु है ऐसा हमको महसूस होता है। समझे? तब कर रहे आज અમારા શત્રુઓને ઓળખી લેવાય છે। એટલે અંતર શત્રુ અને બાહ્ય શત્રુ, એમાં અંતર શત્રુ કોણ? વિષય અને કષાય એ અંતર શત્રુઓ છે। મારામાં ઈચ્છા પેદા થઈ, આનંદનજીને કઢીની ઈચ્છા પેદા થઈ, એ શત્રુ ઉભો થયો। समझ गया? आनंदनजी महाराज को कढ़ी पीने की इच्छा हो गई, वो शत्रु उन्होंने देख रहा है। ये शत्रु बार बार परेशान करता है, मेरे को ध्यान नहीं करने देता है, मेरे को साधना नहीं करने देता है, मेरे को जप नहीं करने देता है, मेरे को परमात्मा में लीन नहीं होने देता। ये मेरा शत्रु है। उन्होंने उसको कैसे घात किया? कढ़ी पिलाते गए, पिलाते गए, पिलाते गए, पिलाते गए, उल्टी होगी तो वो भी पिलाते गए, यूं करके उस शत्रु को खत्म कर। समझ गए? अंतर शत्रु कषाय खड़ा होता है, खत्म। मानस वो खराब है, चलो तुरंत सोचो उसने क्या खराब किया, उसने क्या खराब किया। मेरे को ऐसा बोला नहीं तो ठीक है, उसकी सोच ऐसी होगी तो वो उसके कहने से मैं वो हो तो नहीं जाता हूँ। किसी के अभिप्राय से अपन ऐसे हो जाते हैं। कोई अपन को पागल कहे तो अपन पागल हो जाएंगे, बोलो हो जाएंगे, लेकिन उसकी असर क्यों होती है? हम इतने वीक हैं। दूसरों के अभिप्राय को हम महत्व इसलिए देते हैं कि हम स्वयं वीक हैं। अगर हम ताकतवर होते तो दूसरों के अभिप्राय पे हम हमारा मूल्यांकन नहीं करते। हम हमारा मूल्यांकन क्या करते? दूसरे जो कहते हैं आप बहुत अच्छे हो तो हाँ मैं अच्छा हूं, आप बहुत खराब हो तो हाँ ठीक है मैं खराब हूं। दूसरे के अभिप्राय पे चलेंगे। अंतर शत्रु कषाय और विषय, और उसको भी जनेता कर्म है। तो नमो अरिहंताणम, कर्म रूपी शत्रु को नाश करने वाले, निर्दयता से नाश करने वाले, वापिस खड़े ही नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब वासुपुत्र दादा ने क्या किया? संपूर्ण कर्म का नाश कर दिया, शत्रु आएगा ही नहीं। तो ऐसे निर्दय हो जाना, ऐसे निर्दय हो जाना नहीं। हमारे में पहले चोटी रखते थे मालूम, और पढ़ाई करना बिठाते थे, और उस वक्त अगर नींद आ जाती तो चोटी को ऊपर दूरी से बांध देते। नींद जैसी यूं आए तो चोटी खींचे, वापस खड़ा हो जाए, वापस पढ़ाई कर। समझ में आता? अगर आगे बढ़ना है
तो प्रमाद को निकालना पड़ेगा। जब नींद आना चाहिए तब नींद आना चाहिए, उसके बिना नींद नहीं आना चाहिए, और उस वक्त काम करना ही चाहिए। तो निद्रा वो भी शत्रु है, कषाय वो भी शत्रु है। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, विषय, मेरे को तो इतना सोना चाहिए, मेरे को तो ऐसा स्नान करना चाहिए, मेरे को तो ऐसा ही टॉयलेट चाहिए, मेरे को तो ऐसा ही गद्दी चाहिए, मेरे को ऐसा ही वातावरण चाहिए, मेरे को ऐसा ही चाहिए। अब जो ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही जो कहा है, वो सभी शत्रु खड़े कर देंगे, वो सभी तुमको दुख देंगे। ऐसा चश्मा है तो मैं पढ़ूंगा, ऐसा वातावरण है तभी। मेरे को सुबह की आदत होती है, शाम को पढ़ने का अच्छा नहीं, मैं रात को ही पढ़ती हूँ, दिन को पढ़ते ही नहीं। समझ में आया? समय से अगर बंध गए तो दुखी होना है। वो समय से पाबंदी, आप जिससे डिपेंड हो गए वो तुम्हारा शत्रु। सामान्य व्याख्या लिख देना, आप जिससे डिपेंड हो गए तो वो क्या हो गए? शत्रु। भले वो राग से या द्वेष से, लेकिन डिपेंड हुए मतलब आप शत्रु के अधीन है। आपका सुख, आपका स्वातंत्र्य अब छीना गया। किससे? किससे? जिससे डिपेंड हुए उससे का सुख गया। अब वो है तो सुखी हो, वो नहीं है तो दुखी हो। वो हंसता है तो हम सुखी है, वो नहीं हंसता है तो हम दुखी है। वो खाता है तो हम सुखी है, वो नहीं खाता है तो हम दुखी है। वो देता है तो सुखी है, वो नहीं देता है तो दुखी है। मतलब हमारा सुख पूरा क्या हो गया? जिसका सुख डिपेंड उसका दुख भी डिपेंड। समाज समझने की जरूरत है, जिसका सुख डिपेंड है उसका दुख भी डिपेंड है। साइकोलॉजी इससे आगे बढ़ी, कोई भी व्यक्ति दुखी है तो हम सुखी बना सकते हैं उसको। क्यों? क्यों बोलो तो? काउंसलिंग करते वो क्या करते मालूम है? आपकी जो डिपेंड्स अवस्था है उसको खोल देते, जरूरत ही नहीं है, इसके बिना भी आप रह सकते हो। जो भी दुख है उसको माइनर करने का तरीका काउंसलिंग है। साइकोलॉजी में काउंसलिंग का मतलब क्या? बहुत बड़ी घटना आपके मन में छाई हुई है, उसको जीरो बना देना, और जो छोटी सी संभावना है उसको एनलार्ज कर देना। इसका नाम है साइकोलॉजी, इसका नाम है काउंसलिंग। ठीक है, एक आंख चली गई और उसको बोला गया एक आंख चली गई, भगवान ने तीसरी दी तो है, फिर क्या है, एक गई तो क्या प्रॉब्लम? कोई ऐसा भी बोलता है, और कोई ऐसा, और यार आंख चलती रही, आंख चलती रही, आंख चलती रही, एक आंख चलती रही, एक आंख चलती रही, एक आंख चलती रही। थोड़े दिन के बाद में दूसरी आंख भी चली गई। आंख गई છે ને યાર, સાંભળી તો શકીએ છે ને? તું બોલે છે હું સાંભળું છું, હું બોલું છું, તું સાંભળે છે, બહુ થઈ ગયું। समझ में आता? अब इसको दुखी कोई कर सकता है? बोलो, कोई दुखी कर सकता है? हमको सुखी होना है, दुखी होना है? तो क्या करोगे? डिपेंड नहीं रहना, इसका नाम दीक्षा। डिपेंड नहीं होना, उसका नाम दीक्षा। बहुत अच्छा उपास है, मेरे को बहुत अच्छा लग गया। लेकिन क्या करेंगे हम? कितना भी अच्छा है या कितनी भी तकलीफ है, ठीक है, एक धर्मशाला में जैसे हम रुकते हैं वैसे हम यहाँ पे रुके हैं। अच्छा है तो भी तुम्हारा है, खराब है तो भी तुम्हारा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये निकले। समझ में आता है? इसका नाम दीक्षा है। आंशिक दीक्षा शुरू करो, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। निस्त्रुंसो रातो, रातो मतलब दुश्मन, दुश्मन के प्रति अति निर्दय। खाने की इच्छा हुई क्यों? सोने की इच्छा हुई क्यों? और यही चीज खाने की इच्छा क्यों हुई? खुद के ऊपर अमल करो। सागर जी महाराज का प्रसंग है, दोपहर को 3:30 बजे का समय होगा। जैन मर्चेंट सोसाइटी में चित्र भानु का नाम सुना हो, वो पहले दीक्षित हुए थे, साधु थे, और सागर जी महाराज के ही शिष्य परिवार में थे, बहुत विद्वान थे, विचक्षण थे।
मित्रता को पचाना बहुत बड़ी कठिन साधना है। अज्ञान को पचाना सरल है। क्या कह रहा हूं? अज्ञानता को पचाना सरल है, द्वेष को पचाना सरल है, राग को पचाना बहुत डिफिकल्ट है। सम्मान अपमान को निकल जाना वो बहुत सीधी साधना है। अपमान हुआ उसको निकल गया बहुत सरल है, लेकिन सम्मान को पचाना बहुत कठिन है। समझ गए? अब हमारी बहुत अति पूजा करेंगे, अति आदर करेंगे तो हमको सावचेत होना पड़ेगा। और संसार में भी कह रहा हूं, जो बिना किसी कारण आपसे बहुत प्यार रखते हो तो उससे समझ के रहना। समझ गए? बिना किसी कारण आप पास में आए, अब मैं भी यहीं रहता हूं, आपकी बर्थडे याद रखी, आपका ड्राइंग याद रखा, आपका कलर कौन सा अच्छा लगता है, आपको स्मेल कौन सी अच्छी लगती है, आपका परफ्यूम कौन सा अच्छा लगता है, आपको हीरो कौन सा लगता है, और जो सब कुछ डिटेल जान ले, फेसबुक से जान ले। मत लिखो, ज्यादा आपकी डिटेल शेयर मत करो। लव जिहाद का लिस्ट यहीं से शुरू होता है। आपकी ज्यादा डिटेल्स मत लिखो, और हर एक फोटो फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर मत करो, कोई जरूरत नहीं है। आपका सुख आपके पास, आपके बच्चे आपके पास, आपका हस्बैंड आपके पास, आपका सुख आपके पास, उसको शेयर मत करो। अभी लोग यहाँ पे झगड़ते हो, लेकिन फोटो तो ऐसा रखेंगे लोगों को धूल डालेंगे, हाँ बहुत अच्छा प्यार है। अरे फोटो दिखाने से प्यार होता है क्या? कोई आपको ज्यादा सम्मान दे, ज्यादा प्यार दे, ज्यादा राग करे तो समझना, सचेत हो जाना। अपमान को निगलना सरल है, लेकिन सम्मान को निगलना बहुत कठिन है। इसलिए ऐसा लिखा है, खुशामद खुदा को भी प्यारी होती है। आप किसी की बहुत खुशामद करो, बहुत खुशामद करो, बहुत खुशामद करो, तो याद रखना वो आदमी गया, खुद के लेवल से गया। अब यार उसने इतनी गिफ्ट करी है तो अपन को कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। बस वो कुछ करने में सब कुछ हो जाता है। पार्टनर अगर आपका बहुत आपकी तवज्जो करता है, आपके लिए टिफिन भी लेके आता है, आपको जो खाता है वो भी लेके आता है, आपके पिक्चर की टिकट भी लेके आता है, आपकी फॉरेन की टिकट भी लेके आता है, तो याद रखना अब जरा सावचेत हो जाना। अरे यार मैं धंधा संभालूंगा, जाओ यूरोप जाके आ जाओ, जाओ 50 दिन है मेरी तरफ से गिफ्ट, और टिकट दे दी आपके बर्थडे पर। समझ लेना उसी 50 दिन में सब होने वाला है। जो कुछ भी घोटाला होने वाला है, कब होने वाला है? वही 50। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी व्यवहार में शंका पैदा हो, इसका मतलब ये भी नहीं। लेकिन राग बहुत कठिन है, अंतर शत्रु है। तो यहां भी ये शत्रु के प्रति निर्दय होना, अंतर शत्रु के प्रति निर्दयता से कोई कुचलता है, खत्म। सागर जी महाराज दोपहर को 3-3:30 बजे थे, आगम का काम कर रहे थे। चित्रभानु महाराज उनके लिए थोड़ी सी चाय करने गए, और चाय वेरी और लाए, उनके पास रख दी। साहब जी को बोले, साहब जी चाय आया हूँ, थोड़ा सा लाभ दीजिए। ठीक, रख दिया। सागर जी वापस आगम ले दिया, करते गए। 2 मिनट हुई, आगम रख दिए, काम पूरा कर दिया, सीधा ले लिया, इसमें ले गए, सीधा यूं पी गए और रख दिया। अब इतने में 3-5 मिनट हुई होगी, 4 से 5 मिनट। इतने में तो वो बहन अहमदाबाद में, वो बहन दौड़ते दौड़ते, महाराज चित्रभानु महाराज, चित्रभानु महाराज, वो भाग गए। हमारे साथ एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ? अरे वो जो चाय मैंने बनाई है उसमें शक्कर के बदले मैंने नमक डाल दिया, तो पूरी नमक वाली चाय है, शक्कर नहीं है। क्या बात करते हो? वो तो मेरे लिए नहीं, मैंने गुरुदेव को दी, तो गुरु महाराज ने क्या वापस आकर नहीं वापरा देखा हूँ। दौड़ते अंदर आए, अंदर आके पत्रा खोला तो पत्रा खाली था, और गुरु महाराज तो वही आगम लेके बैठ गए। तो वही उसी चेहरे में किसी भी प्रकार का बदलाव के बिना वही आगम का संशोधन कर, गुरुदेव ये चाय पेट में चली गई। कहां चली गई? गुरुदेव उसमें शक्कर नहीं थी, नमक था। पेट को क्या फर्क पड़ता है? पेट को कोई फर्क पड़ता है? किसको फर्क पड़ता है? कितनी बड़ी जीभ है? कितनी बड़ी है? हाँ? जीभ में, पूरी जीभ में फर्क पड़ेगा। बहुत कड़वी दवा होगी तो कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे। ये इतनी है, इतनी जीभ, कितनी? 1-1.5 इंच की जीभ।
फर्क पड़ता है और उसके फर्क से हमारा पूरा जीवन बदलता है। छठी बारी ना वैष्णव शु बनाओ बोलो। साला 6 दाड़ा उपवास કર્યા અને પારણાનો 1 કલાક અને 1 કલાકની અંદર પણ જીભ ઉપર રહેने वाली कितनी सेकंड कितने मिनट कितने अरे 2 सेकंड तो बहुत हो गया और ये 2 सेकंड के लिए माथा बच्ची कितनी भूल जाते हैं। मैं परसों सुन रहा था, भूल जाते हैं वो चार्ज खड़े, ये बनाना है, ऐसे करना, ऐसे करना। 1 घंटे मैंने कहा इसमें तो 100 अगस्त का गाँव से हो जाता है। ये हमारी ये आदत है, ये दहेज के लिए। सागर जी मैंने कहा उस पेट को क्या फर्क पड़ता है, चाहे चली गई पेट में, सब देखते रहे। ये बनी हुई घटना, इसको क्या कहते हैं, शत्रु के प्रति निर्दय। अब मेरे जिम पे शत्रु आया है, अब उसको तो एक ही काम करना है, गुस्सा करवाना, निंदा करवाना, डांटना, पीटना, ये काम करना। क्या हाथ से करके लाया, कुछ मालूम पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्या तो ऐसा लेके आया, कैसी है देख, शक्कर ही नहीं है, नमक डाला हुआ है, मैंने 1 घूंट पिया, छोड़ दिया, तू पी जा। ये सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और ये काम तो शत्रु को करना था। सागर जी महाराज के सामने जब ये आ गया, उन्होंने कहा शत्रु आया, निर्दयता से खत्म करो, वैल्यूएशन डाउन कर दो, इग्नोर कर दो, समाप्त कर दो। हमारी सबसे बड़ी इंसल्ट क्या मालूम, इग्नोर। आपको जो पसंद नहीं उसको इग्नोर कर दो, फिनिश, वो अपने आप शून्य हो जाएगा। इग्नोर करना बहुत बड़ी चीज है, नहीं कर सकते आदमी। ये जैसी चाय नमक वाली आई, सागर जी मां ने इग्नोर कर दिया, कुछ हुआ ही नहीं, रख दिया, बोलना नहीं, चलना नहीं, सीधा साहब चाय पेट में डालना तो डाल दी गुरुदेव, लेकिन शक्कर नहीं थी, नमक था, होगा जो कुछ भी होगा, पेट में डालने जैसा ही था, डाल दिया। देखते रहे, ऐसे महाधनी थे। आज के वाक्य का चरितार्थ उन्होंने किया जीवन में। अभी करीब 92 इयर्स की उम्र में चित्रबन एक्सपर्ट हो गए। उनके एक्सपर्ट होने के 1 अठवाडिया पहले मैं गया था उनके पास, वल्केश्वर, यही प्रतिमा लेके उनके सामने, वो उनको देखकर इतने भाव विभोर हो गए। क्या सागर महाराज, तुमने गुरुदेव के दर्शन करवा दिए, इतने भाव विभोर हो गए। और ये चीज उन्होंने जो लिखी है, अद्भुत लिखी है, मेरी आंखों से मैंने इनको ऐसे विजय प्राप्त करते हुए देखा है। शक्कर के बजाय नमक वाली चाय को बिना कुछ झिझकाए, नोटिस भी नहीं, जीवन में वो कभी बोले भी नहीं है कि मैंने ऐसे भी कभी चाय पी, ऐसा बोले भी नहीं है। ये सब बताया किसने हमको, चित्रभानु महाराज। तब जाकर के हमको मालूम हुई तो आंतरिक शत्रु प्रसाद और विषय, और उसके नीचे कौन है, कर्म है। तो कर्म के लिए हमको निर्दय होना ही पड़ेगा। और बाह्य शत्रु कौन, तो बाह्य शत्रु के परिबल है शरीर, पहला, उसमें रोग नहीं आना चाहिए। रोग जैसे ही आया, नीति ऐसी कहती है वहीं खत्म कर, 4, 5, 10 दिन उसकी इंतजार करो नहीं, तुरंत खत्म करो रोग को, तुरंत खत्म करो। दूसरा परिवार, परिवार का, शरीर का सौष्ठव क्या, रोग नहीं होना। परिवार का सौष्ठव क्या, सुंदरता क्या, संप होना। किसी भी तरीके से अगर परिवार में वैमनस्य खड़ा होता है, वहीं पे उसको नाश करो। ओके मेरी भूल, सॉरी, एक बार झुकना पड़े तो झुक जाना, लेकिन नहीं, मेरा ही चलना चाहिए, ये सब मैं कमा के लाया हूं, घर मेरे से ही चलता है। तुम लोग तो वो छोटे थे, हाँ भैया, मेरी माँ ने तेरे बाद मेरा जन्म दिया तो मैं छोटा हूं, इसमें मेरी क्या गलती है। और वो बड़ा भाई कहेगा तुम बहुत छोटे थे, मैं कमाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, ये किया वो किया, सब मैंने किया, अब मैं बंद कर रही। अगर जस लेना है, समझ में आता, शरीर की सुंदरता, रोग रहित होना, रोग उत्पन्न हुआ शत्रु, ये बाह्य बता रहा हूं, आंतरिक बता दिया, ये बाह्य। शरीर में रोग उत्पन्न हुआ, वहीं पे उसको समाप्त करो। समाप्त करने का सबसे पहला तरीका कौन सा, मालूम, कुछ भी चीज हुई भूखे रहना शुरू कर देना, खाना नहीं, आराम करना और खाना नहीं। सबसे
80% रोग इससे समाप्त हो जाते हैं, 80%। और दूसरा व्यायाम, स्वखमास ना देना, 100 लोगों का कौशल करना, खड़े खड़े प्रतिक्रमण करना, अपने आप रोग चला जाए। परिवार की अंदर कलुषिकता, एकता खंडित होती है, ऐसा नहीं चाहिए, वहीं पे जुट जाना। तीसरी सांस्कृतिक रक्षा और चौथी राष्ट्रीय रक्षा। इसमें कोई भी प्रकार का अगर दुश्मन खड़ा होता तो वहीं पे समाप्त कर देने का। अगर अपना बच्चा ही हमारी संस्कृति को तोड़ता है तो बच्चे को भी नहीं देखना, उसको भी इग्नोर कर देना, उसको कहते हैं बाह्य शत्रु का समापन। नहीं तो वो धीरे 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 घर में एक आम सड़ी है तो धीरे धीरे पूरे परिवार को सड़ा देगी। और चौथा शत्रु राष्ट्रीय शत्रु, इसके ऊपर में विजय प्राप्त करना। तो आज का वाक्य हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा वाक्य है? निस्तुंसो राघव, मतलब शत्रु के प्रति निर्दय होना, शत्रु को पहचानने में गलत मत करना। अगर शत्रु को पहचानने में गलती करी, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपके अंदर की भावनाओं को डिस्टर्ब करते हैं, वो आपके शत्रु है। भावना मतलब क्या? निस्वार्थ वृत्ति। आपके अंदर निस्वार्थ वृत्ति है, उसको रोकते हैं, वो आपका शत्रु है। और वो कोई दूर और कोई दूसरा नहीं होता है। वो कौन होता है? वो जी होता है। मेरे को ये पिक्चर अच्छा लगता है, देखने का मन हो गया, उसका संसार मेरा कितना बिगाड़ेगा। एक पिक्चर में देखूंगा 3 घंटा, लेकिन वो पिक्चर चलेगा मेरे में कितने समय तक? कितने समय तक? बोलो जल्दी, कितना समय तक? शोले पिक्चर देखा था? देखा था? बोलो ने, कब देखा था? कितने साल हो गए? कौन था उसमें? हीरोइन कौन थी? हाँ बोलो। अब इसकी जरूरत है आपके माइंड को, लेकिन कितने साल से अंदर भर के रखा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये आपका शत्रु है। 3 घंटे में आपके मगज में जो डाल दिया गया वो 30 साल तक जाता नहीं है। ये दोस्ती हम नहीं, वो बसंती याद आएगी, मौसम में मर रही हूं, ये सब याद आएगा ना। और कितने साल हो गए? बोलो जल्दी, ये मगज में अभी भरा है। कितना कितना कठिन है यार, याद रखना कठिन है कि भूलना कठिन है? भूलना बहुत कठिन है। समाधि मृत्यु भूलने से आती है, याद रखने से नहीं आती। इसलिए हमारे ये वाक्य याद रखने का है कि अगर हमारा शत्रु कोई है तो अंतर शत्रु है। सभी बाह्य के शत्रु को हम डिपेंड हुए और खड़े हुए। मेरे को ये कलर अच्छी लगती है। अब ये कल रक्षाबंधन है, बराबर है, अब राखी लेकर तैयार हो जाओगे, बहनों का दिन है और भाई आएंगे और अच्छा ड्रेस या साड़ी या नेकलेस कुछ लेके आ। अरे यार आ कलर तो मैंने गमतो अच्छी लगती, ब्लू कलर अच्छी गमतो यार, वो लेके आया है तो उसको ले ले, बहुत बढ़िया आया है, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हम? और क्या फर्क पड़ता है? मेरे को लाल कलर पसंद है और वो येलो लेके आया, तो क्या फर्क पड़ गया? बोलो ना भाई, क्या फर्क पड़ गया? बोलो जल्दी। हर बार तो 5000 का कवर देता था, इस बार खाली 1000 रुपया दे दिया, तो क्या है? 4000 से तुम्हारा साल निकलता था। बोलो जल्दी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये सभी शत्रुता है, समझ गए? इस शत्रु का नाश करना मेरे को कोई इच्छा नहीं है, और जो लाया जो है बस मजा है। मेरे को ये कलर अगर मैं डिपेंड हो गया तो वो कलर तुम्हारे लिए दुखद हो गया। समझ में आया? ये खाना अगर बराबर आदत लग गई तो उससे तुम डिपेंड हो गए, कहीं भी रहेगा। वो पाव वड़ा पाव खाने के लिए वहीं जाएगा, वो पानी पूरी खाने के लिए वहीं जाएगा, वो इडली सांभर खाने के लिए वहीं जाएगा। घर में होगा, अच्छा बना होगा, तो भी वो लारी में जो खड़ा है वो खाने की मजा लगी है। वो भी बारिश होती हो, वहां पे मक्खी सेकते हो और इधर गरम गरम बनता हो, और वो खड़े खड़े यूं डिश पे लेकर यूं खाना, वो क्या लगता है? अच्छा लगता है ना? ये क्या है? शत्रु है, उसका पोषण है। सागर जी महाराज बता रहे, तुम सब पुरुष तब हो सकते हो
जब शत्रु के प्रति निर्दय होकर के शत्रु को समाप्त कर दो, और शत्रु विषय कषाय आंतरिक है और ये बाह्य में इसके ऊपर आक्रमण अगर कुछ भी आए तो हमको बड़ा, जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसके परिवार में एकता है, जिसका संस्कृति जिस समाज में बराबर पड़ी हुई है, और जिस राष्ट्र पे कोई शत्रु नहीं है, जिसका ज्ञान बराबर सलामत है, वो अजय है। इस परिस्थिति को हम प्राप्त करें, यही मंगल।